Assalamu alaikum my dear students, welcome in online biology class. As you are very near to your exams, so I hope आपकी preparation भी उसके according चल रही होगी. So here we are also at the end part of the chapter what we have started. Hardly 1 or 2 videos will be coming on this chapter. तो हम लोग जो है चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन डील कर रहे हैं एंड मैक्सिमम कंटेंट इसका जो है कंप्लीट हो चुका है. आई डिलीवर्ड इन वीडियो फॉर्म, सो प्लीज़ गो थ्रू दोज वीडियो जो अब तक नहीं देखे हैं. एंड इन दिस टुडेज लेक्चर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज़ द पॉपुलेशन इंटरैक्शंस. तो ये पॉपुलेशन इंटरैक्शंस के बारे में हम लोग यहाँ पे आज बात करने वाले हैं. लास्ट वीडियोस में वी हैव स्पोकन अबाउट द ग्रोथ कर्व, द पॉपुलेशन ग्रोथ, एंड इन दैट पॉपुलेशन ग्रोथ हमने जो है वो ग्रोथ कर्व देखा. देन उससे पहले एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज पिरामिड, ये सारे टॉपिक्स जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द पॉपुलेशन इंटरैक्शन. So there is no natural habitat which has only one species or animals or plants. सारे जो है वो एक कॉमन नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, कोई स्पेसिफिक कोई एक हैबिटेट नहीं होता. फॉर एनी स्पीशीज़ द मिनिमल रिक्वायरमेंट इज़ अनदर स्पीशीज़ एज फूड. अगर हम लोग कार्निवोर्स की बात करेंगे तो वन एनिमल रिक्वायरिंग अनदर एनिमल फॉर फूड पर्पज़. इवन अगर हम लोग प्लांट स्पीशीज़ की बात करेंगे तो इन प्लांट ऑल्सो दे हैज़ अ फोटोसिंथेटिक एबिलिटीज़. ओके, सो प्लांट्स हैव टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दे कैन नॉट सर्वाइव अलोन. They need soil, microbe to break down the organic matter in soil, and then only they will be able to release the inorganic nutrients, and इस तरह से वो अपना process और अपना life complete कर सकते हैं. So it is obvious that in nature animals, plants and microbes do not they cannot survive or they will not live in isolation, but they have to live in or they have to interact with each other in a various way to form a biological community. So there are certain interactions among the species, within the species or out of the species. तो ये interactions हम लोगों को देखने हैं, and by dealing with these interactions only the organism will be able to survive in a sustainable manner in the nature. So let's have a talk about the interspecific and intraspecific interactions. Intraspecific means existing between same population. अगर दो सेम स्पीशीज़ के बीच में अगर इंटरेक्शन है तो that will be intraspecific. Interspecific मतलब between members of the different species. So this interspecific interaction occur between minimum 2 organisms. It is plants or animals or plant and animal. So such interactions may be classified as 4 types. So those 4 types are neutralism, negative, that is harmful, positive, that is beneficial, and both positive and negative interactions. So such kind of interaction we can see in the nature. Even in simplest community, many interactions exist, not all may be easily seen. Interspecific interaction arises from the interaction of populations of 2 different species. जैसे अलग अलग species के birds के बीच में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे भी हम लोगों को interspecific interaction देखने को मिलता है. So these interactions could be beneficial, detrimental or neutral, means neither harm or नॉर बेनिफिट. सो इस तरीके से अलग अलग तरह की बेनिफिशियल और हार्मफुल या दोनों तरह की हमको जो है वो स्पीशीज इंटरेक्शन देखने को मिलती है नेचर में. So in your textbook, in a tabular form, different types of interactions that is available in nature. यहाँ पे जो है वो एक tabular form में आपको दिया हुआ है टेक्स्ट में, जिससे हमको समझ में आता है कि ये कौन सी स्पीशीज़ के लिए बेनिफिशियल है और किसके लिए जो ये हार्मफुल है. तो जैसे कि बहुत सारी इंटरेक्शंस है, कंपटीशन है, देन सिम्बायोटिक है, अमेंसालिज्म, कमेंसालिज्म, पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन. तो इस तरीके से प्लस साइन जो है वो बेनिफिशियल के लिए है, इक्वल साइन जो है वो इनहिबिटेड के लिए है, एंड ओ साइन इज नॉट अफेक्टेड. तो इस तरीके से आपको जो है वो टेबुलर फॉर्म में ये चीज़ें दी हुई हैं. सो जस्ट गो थ्रू दिस कंटेंट.
Now we will see the different types of interactions are present in nature. So there are major 5 types of interactions, or they are also called as relationships. Okay, so these are the different 5, और both the species are benefited अगर ऐसा होगा तो that is called as mutualism, and if it is both are harm then it is called as competition. तो यहाँ पे basic 5 तरह की symbiotic relationship देखने को मिलती हैं: predation, parasitism, competition, mutualism and commensalism. तो यहाँ पे ये basic 5 तरह की जो है वो relationship है, जिसमें parasitism and predation, और इस रिलेशन में ओनली वन स्पीशीज गेट बेनिफिटेड, that is parasites and predators respectively, and in the end the interaction is detrimental, we can say, to the other species, that is host and prey respectively. The interaction where one species is benefited and other is neither benefited nor harm is called as commensalism. एंड इसके बाद एक जो आती है अमेंसालिज्म, जहाँ पे जो है वो ऑन द अदर हैंड वन स्पीशीज इज हार्म वेयर एज अदर इज अनअफेक्टेड, तो ऐसी जो होगी वो अमेंसालिज्म होगा. सो लेट्स सी वन बाय वन व्हाट आर द डिफरेंट इंटरैक्शंस प्रेजेंट इन नेचर. Now the very first relation that we can see, or the interaction we can see in nature, is mutualism. Now this interaction is obligatory and interdependent, बिकॉज यहाँ पे जो है वो दोनों को फ़ायदा पहुँचता है, और वी कैन से इट्स अ सिम्बायोटिक टाइप ऑफ एसोसिएशन, वी कैन से. सो हियर इन दिस टाइप ऑफ इंटरैक्शन बोथ द स्पीशीज़ गेट बेनिफिटेड. तो ये कुछ इस तरह से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रे और प्रेडेटर दोनों का फ़ायदा होता है. अगर एक को फूड मिल रहा है तो दूसरे को वहाँ पे शेल्टर मिलेगा, और अदर वहाँ पे उसका फ़ायदा हो जाएगा. सो लेट्स टॉक मोर अबाउट म्यूचुअलिज्म. सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड म्यूचुअलिज्म is the population of flowering plants by an insect or a hummingbird. So the pollinator benefits from the interaction by receiving nectar, and plant get its pollen transferred from one plant to another. आपको पता है कि plants are motile, they need to they need some what we can say the agents they want, so they can take the pollen away from the plant for their pollination purpose. तो यहाँ पे जो ये नेक्टार के सक करने के लिए जो एनिमल्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, दे आर सकिंग नेक्टार फ्रॉम दी प्लांट, और वहाँ पे उनको नेक्टार मिल जाता है, एंड बदले में वो पोलन ग्रेन्स उनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं, एंड कहीं और जाके वो उसका फिर वो ड्रॉप करते हैं. इस तरीके से पॉलिनेशन का प्रोसेस बहुत ईजिली हो जाता है. सो लाइक दैट दिस म्यूचुअलिज्म इज अ टाइप ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन विच पॉपुलेशन इंटरैक्ट टू द बेनिफिट ऑफ बोथ द स्पीशीज. दोनों का यहाँ पे फायदा होगा, दैट इज द रीजन इसका नाम है म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म में बी ऑब्लिगेट, इट मीन्स इट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ वन और बोथ स्पीशीज, और फैकल्टेटिव, जहाँ पे वन स्पीशीज में सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ अदर. ओके, तो अगर हम लोग नेक्टार एंड फ्लावर की बात करेंगे तो यहाँ पे इट इज अ कंपल्सरी प्रोसेस, वी कैन से, और ऑब्लिगेट, दैट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ बोथ द स्पीशीज. नेक्टार, इंसेक्ट्स को नेक्टार मिल जाता है जिससे उनका सर्वाइवल पॉसिबल हो जाता है, एंड पोलन के लिए पोलन ट्रांसफर वहाँ पे मिल जाता है, पोलन ट्रांसफर करने के लिए विद द हेल्प ऑफ दीज एजेंट्स. तो दोनों का जो है वो यहाँ पे फायदा हो जाता है. तो यहाँ पे अगर हम लोग डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखते हैं तो यही जो मैंने अभी एग्जाम्पल आपसे डिस्कस की, दैट इज पॉलिनेशन के प्रोसेस के लिए जो भी वहाँ पे उन लोगों को फायदा मिल जाता है, दैट इज पोलन गेट ट्रांसफर्ड, पोलन इज डिपॉजिटेड ऑन द नेक्स्ट प्लांट, अलाउिंग द प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. बिकॉज हम लोग फर्स्ट चैप्टर में प्लांट रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर था वहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से प्लांट्स नीड एजेंट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. तो यहाँ पे जब प्लांट्स पर इंसेक्ट और बर्ड्स आते हैं नेक्टार कलेक्शन के लिए, तो बदले में वहाँ पे पॉलिनेशन का प्रोसेस भी बहुत ईजिली हो जाता है. सो इस तरीके से दोनों का इसमें फ़ायदा है, दैट इज़ द म्यूचुअलिज्म. अदर एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो इन एनिमल्स अगर हम लोग बात करेंगे, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स जैसे कि राइजोबियम एंड रूट नोड्यूल्स बहुत फेमस एग्जाम्पल है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, जहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया रूट नोड्यूल्स में रहता है एंड बदले में नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस परफॉर्म करता है. देन प्रोस्ट्रीट्स एंड फंगाई जैसे कि लाइकेंस है, लाइकेंस प्लांट के ऊपर रहते हैं, वहाँ से उनको जो है वो शेल्टर मिलता है एंड बदले में वो उनका न्यूट्रिशन वहाँ पे ऑब्टेन करते हैं. देन अगर हम लोग एनिमल्स की बात करेंगे, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स जैसे कि पॉलिनेशन के भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी. एनिमल्स में एनिमल्स एंड प्रोटिस्ट्स बैक्टीरियाज की यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगी, जैसे कि रूमिनेंट बैक्टीरियाज होते हैं, कोरल रीफ्स होती हैं, तो वो एग्जाम्पल हम लोग एनिमल्स के लिए यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं. सो
hope you understand with the help of these examples that what is the process of mutualism. So after mutualism there is another process. So let's have talk about the another process after mutualism. So next one is competition. सो कंपटीशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हम लोग डिफरेंट स्पीशीज़ और सेम स्पीशीज़ में भी देख सकते हैं. कंपटीशन में बी फॉर फूड, कंपटीशन में बी फॉर स्पेस एंड द अदर न्यूट्रिशन. सो कंपटीशन इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन where both the species are at loss, we can say. Totally unrelated species may compete for the same resources, like in shallow creeks on the west coast of Mumbai. Visiting flamingos and resident fish compete for their common food, the zooplankton etc. तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकते हैं. सो यहाँ पे एक बात और ये बोली जा सकती है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे पॉपुलेशन के लिए, 2 और मोर स्पीशीज़ जब उसके लिए फाइट करते हैं, सो दैट इज़ द कंपटीशन. सो हियर ईच इंडिविजुअल एडवर्सली अफेक्ट अनदर इन द अर्ज ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स, वी कैन से लिविंग स्पेस और अदर कॉमन नीड. तो दे आर अटेम्प्टिंग टू हार्म ईच अदर in the urge of food or the nutrition, we can say, in this process. Moreover, the competition is the use of the same limited resources by 2 or more species in the same place at the same time. So whatever may be the resources, that is anything necessary of life, that is water, nutrient, light, food or space. So there might be a competition, and this competition may cause the development of different niches or physical characteristics. So here we can say, secondly, resources need not always be limiting for competition to occur. In competition, the feeding efficiency of one species is reduced due to interference or inhibitory presence of the other species. Even if resources, that is food or the space, are abundant, then too there might be a competition. हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि leopards do not hunt in close proximity of lion pride. Therefore, competition is best defined as a process in which the fitness is one species is significantly lower in the presence of another species. There might be a chance के जहाँ पे lion is more powerful than the leopard. तो इस तरीके से जो ये limiting resources के लिए जो fight है और जो competition है, there might be a competition for power also. They want to show who is more powerful. In that condition we can say कि यहाँ पे competition होगा. इसीलिए जो है वो leopards they will not hunt wherever the lion is there in close vicinity. तो वहाँ पे यह hunting system नहीं होता, बिकॉज दे नो हु इज मोर पावरफुल. तो इस तरीके से जो कंपटीशन है इट मे अकर बिटवीन 2 ऑर्गेनिजम्स, ओके, फॉर द लिमिटेड सोर्सेज. तो यहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होगा, दैट इज बिटवीन सेम टाइप ऑफ स्पीशीज, जैसे कि बिटवीन 2 टाइगर्स. तो ये एक टाइप हो जाएगी इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन. देन इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी हम लोगों को यहाँ पे देखने मिलता है, दैट इज द कंपटीशन बिटवीन द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज, जैसे कि एक लायन है एंड अनदर वन इज हाइना. इवन दो दे बोथ बिलोंग टू द सेम फैमिली बट दे बिलोंग टू द डिफरेंट स्पीशीज. तो इस तरीके से डिफरेंट स्पीशीज के बीच में जब कंपटीशन होगा तो ये होगा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन. तो लाइक दैट वी आर गेटिंग 2 टाइप्स ओवर हियर. देन अब हम लोग देखते हैं कि इंटर स्पेसिफिक, दैट इज इन डिफरेंट स्पीशीज यूजुअली दे डू नॉट फाइटिंग, ओके. ऐसे अगर इसमें कंपटीशन होगा, लाइक फॉर एग्जांपल ग्रास है, एंड फॉर दिस ग्रास देयर माइट बी अ फाइट बिटवीन द एलिफेंट्स एंड द ज़ेब्रास. दे वांट टू ग्रेज ऑन द सेम लैंड, सो देयर माइट बी अ कंपटीशन फॉर द फूड, दैट इज द ग्रास, बिटवीन दीज 2 डिफरेंट स्पेसिफिक different species organism. So this will be the interspecific competition, यहाँ पे हम लोग इसको बोल सकते हैं. Then another one is the intraspecific competition, जैसे कि सेम स्पीशीज के बीच में अगर फाइट हो रही है for the resources, for the food purpose, for the nutrients or the water, air, anything that is useful for the sustainable life. तो वहाँ पे अगर जो competition होगा between the same species, and that is called as intraspecific competition. तो इस तरीके से जो है वो competition की दो टाइप आ जाएगी. सो दिस कॉम्पिटिशन में बी बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज. अपनी फिटनेस दिखाने के लिए भी वहाँ पे फाइट हो सकती है. सो दैट विल बी ऑल्सो अगेन अ कॉम्पिटिशन ओनली इन नेचर, वी कैन से.
सो एक इसका एक बीच का हल जो है वो ये नज़र आता है, दैट इज़ कॉल्ड एज रिसोर्सेज पार्टीशनिंग। तो ये रिसोर्सेज पार्टीशनिंग का जो कंसेप्ट है दैट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर लिमिटिंग रिसोर्सेज हैं तो यहाँ पे ये हो सकता है कि इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन विद सफिशिएंट रिसोर्सेज स्पीशीज फेसिंग कॉम्पिटिशन विल इवॉल्व मैकेनिज्म दैट प्रमोट को एग्जिस्टेंस रादर दैन एक्सक्लूजन। तो ये जो मैकेनिज्म होगा रिसोर्स पार्टीशनिंग का होगा, यानी कि टू स्पीशीज compete for the same resources, they could avoid competition by choosing different times for feeding। अगर एक ही जगह उनको फीड करना है so there might be a chance के वो लोग दोनों अपना अलग अलग टाइमिंग डिसाइड कर लें और अलग जगह डिसाइड कर लें, तो दोनों में वहाँ पे जो है वो कंपटीशन का सवाल ही नहीं होगा। So here we can observe the example of a resource partitioning, that is specialized feeding niches of various birds of coastal and wetlands enable coexistence of many species, so they may be selecting their areas. Some may feed from the upper area, that is on the surface of water, that is flamingo is feeding on minutes और organisms in mud में से वो organisms अपने select करके they will feed, then ducks they are feeding in the between areas। तो इस तरीके से जो है वो in between vegetation और aquatic vegetation से वो लोग अपना जो है वो feeding कर सकते हैं। तो इस तरीके से different areas अगर वो लोग select कर लें, अगर एक ही area में feed करना है देन देर माइट बी अ चांसेस कि वो अपना उसका लेवल, जैसे कि वो कोई सरफेस से फीड कर रहा है, कोई बिटवीन एरिया से फीड कर रहा है, कोई बीनीथ द लेवल ग्राउंड लेवल से फीड कर रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे कंपटीशन को रोका जा सकता है। सो लाइक दिस ये जो है रिसोर्स पार्टीशनिंग के थ्रू हम लोग कुछ हद तक कंपटीशन को रोक सकते हैं। एंड इसकी और भी हम लोगों को एग्जाम्पल्स देखने को मिलेगी। अगर हम लोग बर्ड की बात करते हैं, बर्ड में ऑलरेडी मैं आप लोगों से जो है ये एग्जाम्पल वेबलर की एग्जाम्पल्स निश जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी तब मैंने आपको ये वेबलर स्पैरो की एग्जाम्पल दी थी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से रिसोर्स पार्टीशनिंग ये लोग इस्तेमाल करते हैं। सम आर फीडिंग ऑन दी अपर एरिया, सम आर फीडिंग ऑन दी मिडल एरिया एंड सम आर फीडिंग फ्रॉम दी लोअर एरिया। ये मैंने आपको निश के एक्सप्लेन करने के टाइम पे सेम इमेज एक्सप्लेन की थी। तो इस तरीके से भी यहाँ पे ये लोग एक ही प्लांट से अगर इन लोगों को फीड करना है तो इस तरीके से अलग अलग एरिया सिलेक्ट करके ये लोग यहाँ पे कॉम्पिटिशन को रोक सकते हैं। सो लाइक दैट बाय देयर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और इसी को जो है वो रिसोर्स पार्टीशनिंग कहा जाता है। तो बाय दिस प्रोसेस दे आर एबल टू अवॉइड कॉम्पिटिशन। सो दिस वाज अबाउट कॉम्पिटिशन। इसके बाद भी जो है और 3 कंसेप्ट रह जाते हैं, दैट इज पैरासिटिज्म, प्रेडेशन एंड कमेंसालिज्म। तो ये जो 3 लास्ट के जो स्टेप्स और 3 प्रोसीजर जो है वो इंटरैक्शंस हैं, एक्चुअली ये जो रह जाते हैं ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। सो वट एवर आई एक्सप्लेन टूडे, इट्स अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट कंसेप्ट फॉर टूडे। सो प्लीज गो थ्रू माइन्यूटली एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करो, गो थ्रू द इंटरनेट, एंड वहाँ पे भी आपको और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगी, उसको भी आप जो है वो ले सकते हो। यू कैन कंसिडर दिस फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज। सो लाइक दैट जो है वो आज का मैं लेसन यहीं ख़त्म करती हूँ, आज का जो वीडियो है यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको जो है वो उसको गो थ्रू करना है, जस्ट रीड इट आउट वेरी नाइसली। आई नो कि बहुत ईजी है ये चीज़, बट अगर स्टिल कोई डाउट आता है तो आप इसको प्लीज़ गो थ्रू करो एंड आस्क योर डाउट्स टू मी। ओके, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल मीट with the end part of the chapter. So till that you just take care. Assalamu alaikum.